ہم ٹیگور پیدا نہیں کر سکتے آپ، ہم ابراہیم لنکن کو پیدا نہیں کر سکتے. کیوں پیدا نہیں کر سکتے؟ یہ ایجوکیشن سسٹم میں کہیں پہ خامی ہے. اگر تمام سروں کو زیادہ 8,000 روپے وہ انصاف کر سکتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ. 8,000 پہ ہمارا کام چل رہا ہے آج کہ میں نے ایک بچے کو گورنمنٹ اسکول میں ڈال دیا. 5th تک میں اللہ کو گواہ مان کر کہتا ہوں 5th تک ایڈیشن اور سبٹریکشن اس کو نہیں آیا. وہاں ولی کو بڑا دکھایا گیا ہے، اکبر کو چھوٹا دکھایا گیا ہے. ولی بڑا ہوتا ہے، بڑا کون ہوتا ہے؟ اکبر بڑا ہوتا ہے. اگر اچھی طرح سے اس چیز کی تحقیق کی جائے تو ہمیں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ ایجوکیشن سسٹم میں خامیاں ہے. اس چیز کو آپ کو ماننا ہی ماننا ہے کسی بھی صورت میں. نہیں تو آگے جا کے ہمیں صرف یہ کاغذ کی پرچیاں ملیں گی جن کو آپ ڈگریاں کہتے ہو. ضعیف پتہ ہے کس کو دکھایا گیا ہے؟ ایک لمبی داڑھی والے کو قمیض شلوار پہنے ہوئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی اور کو بھی دکھا سکتے ہیں جس کے پاس چھڑی ہوگی، کمزور ایسے باقی چیز. اس کے سر پہ ٹوپی، داڑھی لمبی، اور اس کو زور سے ضعیف پڑھایا جاتا ہے. کچھ اس بنا بدقسمتی ہے حیثیت. یہ بگڑے ہوئے نوجوان کل ان بچوں کے باپ ہوں. تم ساتھ کیا بنی ادماشکس تم ساتھ اصل سائن کوئرن ہنس کوئر تمن سے کیا حالت ہوئی. تم ساتھ اصل سائن شرن ہنس شر تمن سے کچھ حالت ہی کرنی. پھٹ رہا ہے جگر اللہ کی قسم. میں کہتا ہوں ہماری عصمت، ہمارا سب کچھ لٹ رہا ہے ایجوکیشن کے نام پہ. باقی اس انٹلیکچوئل کلاس میں انٹلیکچوئل ہونا چاہیے. پر میں لکھنگ لوگ یہ تالیاں بجا رہے تھے، وہ ناچ رہی تھی بیچارے. ناچتے ناچتے انسان کے کپڑے پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں. ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں. میں نہیں کہتا وہ کہیں کسی اور پلانٹ سے آئی ہے. یل پت امس تالیاں کرو تو سمجھو کت سمجھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم القرآن وعلمه. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق الله رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. علم را بر دل زنی یاری بود، علم را بر دل زنی یاری بود، علم را بر تن زنی ماری بود. سٹیج پہ جلوہ افروز مہمانان گرامی، میں ہر ایک کا اسم مبارک نہیں لے سکتا ہوں کہ جو ادب کی تنگ نامی ہے. میرے سامنے بیٹھی میری پیاری بہنیں اور میرے بھائی حضرات، اور جہاں جہاں تک میری یہ آواز جا رہی ہے ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذہن میں بہت سارے سوالات تھے، ذہن میں بہت کچھ گونج رہا تھا، لیکن جو ہی میں اس اسٹیج پہ پہنچا، پیچھے سے آواز آئی، دائیں سے آواز آئی، بائیں سے آواز آئی، آپ کے پاس صرف 5 منٹ ہے. 5 منٹ میں کسی چیز سے انصاف نہیں کر سکتا ہوں. اگر 5 ہی منٹ ہے تو میں تمہید کروں گا، تمہید کے بعد اپنا ٹاپک اختتام کروں گا. میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہاں پہ میں نے جو انٹلیکچوئل کلاس دیکھا ہے ان سے مجھے بات کرنی ہے. میں 2020 سے ایجوکیشن سٹڈی کر رہا ہوں، ایجوکیشن کیس سٹڈی کر رہا ہوں. یہاں پہ شبیر صاحب ہمارے بیٹھے ہیں. فارچونیٹلی یہ سسٹم میں ہے، شاید 1 2 بندے 2 3 بندے اور ایجوکیشن سسٹم میں ہیں، باقی ہم سب ایجوکیشن سسٹم سے باہر ہیں. لیکن ہم بھی کام کر سکتے ہیں. یہ لوگ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، لیکن جو لوز فولوز ہیں ان کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک میں نے ایجوکیشن سسٹم کو سٹڈی کیا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا گراف جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے. شاید آپ اس چیز سے اتفاق نہیں کرو گے. اس کے چند وجوہات ہیں جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے شبیر صاحب کبھی پینل میں ہوں گے تو میرے خیال سے یہ چیزیں وہاں یہ پوچھا سکتے ہیں، ان کا سدباب نکال سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو چیز میں نے دیکھی ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ ہمارا نصاب جو ہے وہ یکساں نہیں ہے. میں نے پہلے ہی کہا میں 2020 سے یہ کیس سٹڈی کر رہا ہوں. میں چھوٹا موٹا طالب علم ہوں، میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، میں کسی سکول سے پڑھا لکھا ہوں. چھوٹا موٹا طالب علم ہوں، سیکھ رہا ہوں. میرا شوق تھا کہ وہاں ہی بیٹھنا میں آپ سے سیکھوں، لیکن کچھ چیزیں اندر سے کھٹک رہی ہے. میں نے سوچا یہاں انٹلیکچوئل کلاسز ہیں، ان سے بات کرنی ضروری ہے تاکہ ہماری بات آگے تک پہنچائے. تو سب سے پہلے جو میں نے ایک چیز سٹڈی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ہمارا نصاب سسٹم جو ہے وہ یکساں نہیں ہے. آپ کہو گے کیسے؟ ہمارے پرائیویٹ سکولوں میں یا جن کو ہم نجی سکول کہتے ہیں ان کا سلیبس الگ ہوتا ہے. ہمارے گورنمنٹ سکول کے بچوں کا سلیبس الگ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک کیس میں نے سٹڈی کیا ہے، اپنے گھر سے سٹڈی کیا ہے. وہ یہ کہ میں نے ایک بچے کو گورنمنٹ سکول میں ڈال دیا.
5th तक मैं अल्लाह को गवाह मानकर कहता हूं 5th तक एडिशन और सबट्रैक्शन उसको नहीं आया। इसके बरअक्स मैंने एक छोटे बच्चे को LKG में दर्ज किया है, एडमिट किया है। उसके बाद मैंने 2 साल के बाद उसी से पूछा है वो फिर एडिशन सबट्रैक्शन क्या। मैं कहता हूं मैथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो सॉल्व करना है। तो ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है। नंबर 1। नंबर 2, हमारे मुख्तलिफ इदारे हैं। एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होता है, एक स्कूल होते हैं, एक मकतबे होते हैं, एक मदरसे होते हैं। इनमें भी ऊंच नीच का फर्क है। फिर ये आगे जाके कम्पीट नहीं कर सकते। उनको सिर्फ कलाम पाक पढ़ाया जाता है, उनको सिर्फ दर्स हदीस पढ़ाया जाता है। हमें चाहिए एक अच्छा सा साइंटिस्ट, वो इस्लामिक साइंटिस्ट होना चाहिए। हम टैगोर पैदा नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते? हम इब्राहिम लिंकन को पैदा नहीं कर सकते। क्यों पैदा नहीं कर सकते? ये एजुकेशन सिस्टम में कहीं पे खामी है। मैं तनकीद कर रहा हूं, आप बुरा मत मान लीजिए इसको, लेकिन ये हकीकत है। जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, मैं वही आप तक पहुंचा रहा हूं। इब्राहिम लिंकन हमें नहीं मिल रहा है। आप हमारे पास साइंटिस्ट का रेशो अकॉर्डिंग टू अशरफ साहब है, साइंटिस्ट का रेशो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे दारुल के बच्चे सिर्फ इमामत करते हैं। इमामत में एक इमाम साहब को मैं आपको अपनी बात वो इंसाफ कर सकता है अपनी फैमिली के साथ। 8,000 पे हमारा काम चल रहा है आज। कितने 50 बराबर देगा सर, 50 बराबर देगा, बराबर दी। वो कोई गलत काम करने पे मजबूर होता है। हम एक प्राइवेट स्कूल के टीचर को 50 से 5,000 रुपया तनख्वाह देते हैं, वो अपनी फैमिली को कैसे चला सकता है? अब स्मूथ सिस्टम चले इसके। प्राइवेट स्कूल पे हमारी नजर नहीं है। मैं इस स्टेज के माध्यम से ये बात शबीर साहब तक पहुंचाना चाहता हूं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, मैंने इनको भी स्टडी किया है पिछले 1-2 साल से, तो जहां जहां पे रहे हैं वहां पे इनकलाब लाया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के माध्यम से इंशाअल्लाह ये बात आगे तक पहुंच जानी चाहिए। प्राइवेट स्कूल के टीचर बेचारे अनपढ़ नहीं होते, ये भी पढ़े लिखे होते हैं। इनके लिए एक लाहेअमल होना चाहिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली ठीक होगा जब हम उस्ताद के साथ ठीक ठाक रहेंगे, एजुकेशन सिस्टम ठीक ठाक रहेगा। नंबर 2, वो जो हमें पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, मुझे इन चीजों से अलर्जी है, रिकॉर्डिंग से, बाकी चीजों से। अताफ साहब जानते हैं एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें पढ़ाया जा रहा है। आपने कभी गौर किया है? एक जमाने में था वली और अकबर। फारूक साहब ने पढ़ा होगा, शरीफ साहब ने पढ़ा होगा, ये साहिब भी पढ़े होंगे। अगर आपने अच्छी तरह से उस केस को स्टडी किया होगा, वहां वली को बड़ा दिखाया गया है, अकबर को छोटा दिखाया गया है। वली बड़ा होता है, बड़ा कौन होता है? अकबर बड़ा होता है। अगर अच्छी तरह से इस चीज की तहकीक की जाए तो हमें क्या पढ़ाया जा रहा है? ये सही तालीम है। एजुकेशन सिस्टम में खामियां है, इस चीज को आपको मानना ही मानना है किसी भी सूरत में। और इस चीज को एक वो लोग सॉल्व कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स को जो एजुकेशन सिस्टम में है, एक वो लोग सॉल्व कर सकते हैं जो एजुकेशन सिस्टम से बाहर है, वो भी कदम उठा सकते हैं। नहीं तो आगे जाके हमें सिर्फ ये कागज की पर्चियां मिलेंगी जिनको आप डिग्रियां कहते हो। इन डिग्रियों का हमें क्या करना है? अनएम्प्लॉयमेंट रेशो कितना बढ़ गया है, ये आसमान को छू रहा है यार। लड़कियां ड्रग्स कर रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार है, जब उनके पास हुनर ही नहीं है। सिर्फ इमाम बनाया जाता है। इमाम एक इंजीनियर होना चाहिए, एक साइंटिस्ट होना चाहिए, एक टीचर होना चाहिए, एक अच्छा इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। 2 बंदों से मैं मिला हूं कश्मीर में, एक मुफ्ती नजीर अहमद कासमी साहब से, एक डॉक्टर नजीर अहमद जरगर साहब से। तो बड़े इंटेलेक्चुअल है, उन्होंने इस तालीम के साथ साथ उस तालीम को भी हासिल किया है। जब उनके पास बैठते हर एक मसले का हल निकलता है। जब एक ऐसे इंसान के पास बैठते हो जिसका इल्म महदूद होता है, वहां फितने पनपते हैं, वहां लड़ाइयां झगड़े स्टार्ट होते हैं। तो बेहतर यही है कि हमें दोनों साइड को देखना है, सिक्के के दोनों पहलू को देखना है। अगर सिक्के का एक ही पहलू आप देखोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। नंबर 2, एक उसी किताब में मैंने एक चीज और एनालाइज किया है। उर्दू है शायद पहले पढ़ाया जाता था, तो एजुकेशन सिस्टम को चुवोत शायद आपकी तवज्जो उसकी तरफ नहीं गई होगी। इस पर नाम ज़ोत से ज़ईब पता है किसको दिखाया गया है? एक लंबी दाढ़ी वाले को कमीज सलवार पहने हुए। इसका क्या मतलब है? किसी और को भी दिखा सकते हैं जिसके पास छड़ी होगी, कमजोर है, बाकी चीज। इसके सिर पे टोपी,
दाढ़ी लंबी और इसको जोर से सही पढ़ाया जाता है। इसका मतलब यह है हमें इससे पॉजिटिव लेना है कि मुसलमान को सही दिखाया गया है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, किसी और को भी दिखा सकते हैं, हमें ही क्यों सही दिखाया गया है? क्योंकि हम इस चीज की तरफ कभी नहीं गए। इन छोटी छोटी चीजों को आप छोटी चीजें मत समझिए, ये बड़ी चीजें हैं। जब ये बच्चे के जहन में व्यवस्था होगी तो बच्चा आगे जाके क्या करेगा। अब क्या कर सकते हैं, बार बार पीछे से आवाज आ रही है, हो सकता है घंटे भी चुभाएंगे। बस 1-2 मिनट में मैं कंक्लूड करूंगा, 1-2 मिनट में कंक्लूड करूंगा। एक और केस मैंने स्टडी किया है लास्ट ईयर। मैं एजुकेशन पे ज्यादा काम करता हूँ, बैठ के अंदर बैठ के कमरे में बैठ के कहीं पे जाके ये सारी बातें मैं शायद शहीद साहब को ही बता रहा हूँ। आपको इन बातों से शायद कोई गरज नहीं है, आप छोटे बच्चे हो, लेकिन आगे जाके आपको भी काम आएंगे। एक और केस मैंने लास्ट ईयर स्टडी किया है, वो ये है कि एक बहुत बड़ा स्कूल हमारे डिस्ट्रिक्ट का, एक एनुअल फंक्शन चल रही थी, वहां पे एनुअल फंक्शन चल रही थी। वहां पे हमारे मिनिस्टर साहिबान थे, वहां पे बड़े बड़े लोग थे, इंटेलेक्चुअल क्लासेस थे। एक 22 साल की बच्ची आगे नाच रही थी। मुझे क्या कहता हूं मैं कि दिल फट चुका है अल्लाह की कसम। हम जा कहां रहे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम है क्या, फट रहा है जिगर अल्लाह की कसम। मैं कहता हूं हमारी असमत, हमारा सब कुछ लुट रहा है एजुकेशन के नाम पे। जाने तो ये आवाज कहां तक जाएगी, मुझे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जो सच है मैं कहूंगा, सच कहता रहूंगा, गोली चले गर्दन काटे कोई, मैं कहूंगा, क्योंकि मेरा फ्यूचर जो है उसकी तरफ मैं देख कर ये बात कर रहा हूं। Because the story will hear about 18 to 22 when बच्ची अवस्था नाचा broken because of her zealousness। बाकी उस इंटेलेक्चुअल कला, उसमें इंटेलेक्चुअल बना चाहिए, पर में लिखिंग नोट, ये तालियां बजा रहे थे, वो नाच रही थी बेचारी। नाचते नाचते इंसान के कपड़े पता नहीं कहां जा रहे हैं। हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, मैं नहीं कहता वो कहीं किसी और प्लेनेट से आई है। यलपत इमस तालियां करो तो समझो कट समझो अगर ये कंक्लूड, मैं आपका टाइम जाया नहीं करूंगा। बाकी जो मेहमान यहाँ हैं, मैं सुनने के लिए आया था, लेकिन आपने बुलाया है तो मैं मजबूर हो गया। तो मैं सभी तालियां करा, बोर्ड इंटेलेक्चुअल क्लास से तालियां करा। अब एक चीज मैं आपसे कहूंगा, यल इमस क्वारिकस ब्रोके तालियां करो, हौसला अफजाई करो, काट पे ना आगे जाके क्या बढ़ेगी, इसका फ्यूचर क्या होगा, इसके जहन में क्या बैठेगा। मुझे नाच गाने पे ये लोग हौसला अफजाई कर रहे हैं, मेरा फील्ड यही है, मैं सबसे अच्छी हूं इस फील्ड में। इंटेलेक्चुअल क्लास बैठा था वहां करने की, ये तनकीद बराई तामीर, लंबी दाढ़ी वाले हमारे एमएलए साहिबान, और वहां पे वो तहसीलदार साहब थे, बात की थी, मतलब बल्कि तुम सही है लेकिन पेरेंट तुम इस पेरेंट बैठन कर रहे बोर्ड स्कूलों। बस मुझे तरस आ गया इस चीज पे। मैंने उसी वक्त कहा कि एजुकेशन सिस्टम अब पीछे जा रहा है। एक कागज की डिग्रियां हमें काम नहीं आएगी, एक चेंज लानी है हमें। और एक और बात, मैं अलाव को क्षमत क्योंकि मैं इस इलाके का नहीं हूँ, इस इलाके का नमक खाया है। ये मैंने अगर पंजाब का प्रॉब्लम बात में करनी है, उसका कहा था कि मैं पर्टिकुलरली आता हूँ, इनसे बातें अपनी शेयर करता हूँ किसी भी वक्त। लेकिन ये पाबंदी के मैं उनको बताता हूँ आपकी गलती कहाँ, पॉजिटिव कहाँ है, नेगेटिव कहाँ है, वो उसको ठीक करने की जरूरत है। नकर भी तारीफ याद चाहिए, ये जो कर रहे हैं माशाल्लाह ठीक ठाक ही कर रहे हैं, लेकिन विकेंड साहब में वोट याद चाहिए हजरात भी अच्छे। हमने तो ये कहा मैं पेशे से एक दुकानदार और मैं स्कूल में ज्यादातर जाता हूँ। मैं दिल्ली ख्वाहिश आसा कि बगा एजुकेशन सिस्टम से बात में नसीब अपना अपना उस नसीब बस के अलबत्ता वाबस्तगी में ज्यादा मनसूब। मैं हर एक टीचर को अपना रूहानी बाप समझता हूँ। मन ताल्लमल हुर्फुन फमिन्नु मौला, जिससे एक ह्रुफ सीखा है वो आपका उस्ताद है। चाहे सेठा है, वही पाकुन दचुन पाकुन फोवर पाकुन क्या पाकुन अतरेटा क्या करे सो पहले आपके उस्ताद। एक बात मैं शकील साहब से कहना चाहता हूँ, आपके एरिया में जितने स्कूल है आपका एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट हो रहा है, होता जा रहा है। पन्निस अलाकस के रोज एक केस मैंने स्टडी किया है, ये हो चुका एजुकेशन पॉलिसी में पॉइंट आपने 15 बच्चों का टीचर, चलो ठीक है 15 बच्चों के लिए एक टीचर है। जहां 5 क्लासेस है वहां 30 बच्चे हैं, जरा मुझे ये बताओ वहां कौन सा इंसाफ होगा। एक टीचर छुट्टी पे होगा कभी ना कभी, बीमार हो गया, घर की कोई मजबूरी होगी, 5 क्लास ना तो एक पढ़ना हुई 5 सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाना, चलो इसमें 5 याद रहे 4 तो एक पढ़। एक टीचर 4 क्लास को कैसे 5 क्लास को कैसे अटेंड कर सकता है एट ए टाइम? वो कैसे अमल से इंसाफ के नाम से नाइन से
मैं हर एक चीज के साथ हूँ, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम में खामियां हैं उसके साथ भी नहीं हूँ। मैं सीना ठोक के कहूंगा, मुझे कोई मारे डांटे, लेकिन ये हमारा फ्यूचर है। ये तबाह हो गया तो हम तबाह हो गए, ये तबाह हो गए तो हम तबाह हो गए। अगर इस खबर के मकान बिल्डिंग बनाओ कि लगे न कुनी, इस फेरो 5 स्टार होटल में लगे न कुनी, इस कसो भजन गार्डन में लगे न कुनी, जब तक ना ये फ्यूचर कुछ उस बना बदकिस्मती या हैसियत, ये बिगड़े हुए नौजवान कल उन बच्चों के बाप हो, तम साथ क्या बनिया मास्टर्स, तम साथ असल साइन कोयरन हंस कोयर, तुमन से क्या हालत हो, तम साथ असल साइन शुरन हंस शुर, तुमन से कुछ हालत ही करनी। जब हम आज नहीं जाएंगे तो फिर कब जाएंगे? मिस्टर शाबाश सुना शेर किया, अदरवाइज तो जोनी की अलबत्ता फिर हम ज़हन समझ बदलता है कोई बात ना। तो बच्चों आज बोल रहा है काम तो करे फंसे थी, तो बच्चों को नते के जे खंजहारी पुनो ईमान पनो, सुनिसा खंजहारी पुनो ईमान पनो, तुम जाम वेल के ज़राई ले, खंजहारी पुनो ईमान पनो, खंडहार आपको समझ में आया होगा, वो खटल को सुनो पनो ईमान पनो, तुम जाम वेल के ज़राई ले, पता लगे तुम जाम का भाषा पनो मान खबर क्या है, इंटेलेक्चुअल शाहबाज जो सौदा एस्पुर, जो सौदा एस्पुर, इस्तेमाल एस्पुर, हमारे पास डिग्रियां हैं, हमारे पास सब कुछ है, तद्राव खचर या बस्ती मां वो खोटा निकला, इसका कोई फायदा नहीं है। मैं अपनी डिग्रियों की थैलियां लेके घूमूं, इसका कोई फायदा नहीं है जब तक ना मैं किसी की इस्लाह करूं। ये तो टाइम नंबर का सिगरेट वो वापस फेरन, इंडिविजुअल लेवल पे ये काम करने चाहिए, क्योंकि वक्त की तंग दामनी है और आप भी तंग आ चुके हैं मेरी वजह से। अगर आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई है तो इसके लिए माजरत का। वस्सलाम अलैकुम।